جنریٹر بھی گانا کرتا ہوں. خوش آمدید, السلام علیکم. لائٹ کامیڈی ٹیلی فلم عیدی میں ملی بہو, اس کا یہ سین نمبر 25 میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وقت ہے یہ دن شام کا, مقام ہے بنگلے کا لون, کردار ارسلان, نازنین, غزل, فرحان. اسکرین پلے میں ایک ارسلان اپنی بائک کو صاف کر رہا ہے. نازنین لون میں کرسی پر بیٹھی ہے, کوئی بک اس کے ہاتھ میں ہے. اندر سے غزل آتی ہے, وہ پہلے ارسلان کو دیکھتی ہے. ارسلان غزل کو دیکھ کر دال نکال کر ہنستا ہے, جو اس کا اپنا اسٹائل ہے. غزل بھی مسکراتی ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ چل کر نازنین کے پاس والی کرسی پر آ کر بیٹھ جاتی ہے. اسی دوران ارسلان بھی ان دونوں کے قریب آتا ہے. غزل کے ہاتھ میں پرس ہے. غزل کہتی ہے, مجھے مارکیٹ سے کچھ مسالے کے پیکٹس لینے ہیں. ارسلان, تم کیا مسالوں پر وہ کہتا ہے کہ تم کیا مسالوں پر کوئی تجربہ کرنے والی ہو, ریسرچ کرنے والی ہو. نازنین بک سے نظر ہٹا کر کہتے وہ دیکھتی ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے مہمان غزل صاحبہ کو کوکنگ کا بھوت سوار. اس بات پر غزل مسکراتی ہے مگر ارسلان خوف زدہ سا ہو جاتا ہے. ارسلان, غزل تم کسی پیر بابا سے تعویذ لے آؤ, یہ بہت بڑے خطرناک ہوتے ہیں. غزل مسکراتے ہوئے, کچھ بھوت بہت پیارے ہوتے ہیں. جب یہ آپ پر سوار ہوتے ہیں نا, تو آپ بڑا نام کماتے ہیں. ارسلان, تمہیں بھوتوں سے ڈر نہیں لگتا؟ نازنین, ارسلان, یہ بھوت کا محاورہ ہے, کوئی اصلی کا بھوت نہیں. ارسلان, اچھا, مگر میں نے تو کبھی ایسا محاورے والا بھوت نہیں دیکھا. نازنین بڑا سا منہ بنا کر, اسے دیکھ لو, غزل کی طرف اشارہ کرتی ہے. غزل, ارسلان, تم میرے لیے مسالے کے کچھ پیکٹس لے آؤ گے؟ تمہارے پاس بائک ہے نا؟ ارسلان, مگر اس میں تو پیٹرول نہیں ہے, اور فرحان کی بائک بھی نہیں کھڑی, ورنہ میں اس میں سے پیٹرول چرا کر اپنی بائک میں ڈال دیتا. غزل حیرت سے, تم فرحان کی بائک سے پیٹرول چراتے ہو؟ بہت بری بات ہے. نازنین کہتی, فرحان ہمارا کزن ہے, میں تو آئے دن فرحان سے پیسے ادھار لے کر کبھی واپس بھی نہیں کرتی. غزل, یہ تو بہت غلط بات ہے, کزن ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم چوری کریں. نازنین, جب فرحان کو اعتراض نہیں تو تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ارسلان, غزل, فرحان پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے, تو اس کے پاس کافی پیسے ہوتے ہیں. غزل, تو تم بھی جاب کر لیتے, اس طرح تمہارے پاس بھی کافی پیسے ہوتے ہیں. اس کو وہی مشورہ دیتے. ارسلان, ماما منع کرتی ہیں, وہ مجھے بڑا بزنس مین بنانا چاہتی ہے. غزل, یہ تو بہت اچھی بات ہے, ویسے بزنس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ نازنین, شیجا انکل نے کہا ہے نا, وہ عیدی میں کافی دولت ہمیں دیں گے. ارسلان, اور میں اس سے مرغیاں خریدوں گا. غزل حیرت سے, مرغیاں؟ اتنے میں فرحان بائک لے کر اندر داخل ہوتا ہے, گیٹ کے اندر سے آتا ہے. ارسلان کہتا ہے, فرحان آ گیا, میں بھی اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا میں اس کی بائک سے پیٹرول چرا لوں. نازنین, ارسلان, تم سے بائک صحیح چلتی کہاں ہے؟ غزل, تم فرحان کے ساتھ جا کر پیکٹس لے آؤ. اتنے میں فرحان انہیں قریب آ جاتا ہے. ارسلان, غزل کو مارکیٹ سے مسالوں کے پیکٹس چاہیے. نازنین, فرحان, تم غزل کو مارکیٹ لے جاؤ. غزل گھبرا کر, مگر میں کبھی بائک پر بیٹھی نہیں ہوں. فرحان, سوری غزل, ہمارے پاس کار تو ہے نہیں. اب وہ ایک دم سوالیہ انداز میں کہتا, اب غزل, فرحان, تم خود ہی لے آؤ. غزل پرس سے پیسے نکالنے لگتی. فرحان, غزل, بائک کی سواری کا اپنا ایک الگ مزہ ہے. غزل ڈرتے ہوئے, نا بابا نا, میں گر گئی تو؟ فرحان غزل کو دیکھتے ہوئے, میں ہوں نا تمہیں سنبھالنے کے لیے. ہلکی سی رومانٹک میوزک چلے گی. یہ سب ایک زومانی جملہ ہے. یہ رومانٹک خود ایک اندر کی جو دل کی جو ہوتی ہے نا خواہش,
और तमन्ना या तलब वो एकदम से बाहर आती है। तो ये वो जुमला है कि फरहान के मुंह से ये जुमला बेसाख्ता निकल जाता है, मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए। यहाँ हल्की रोमांटिक म्यूजिक की आवाज बैकग्राउंड से चलेगी। गज़ल अपनी खूबसूरत आंखों से फरहान को चौंक कर देखती है। फरहान की आंखों में भी एतमाद भरी मोहब्बत है। फरहान फिर कहता है, एक बार भरोसा करके करके देखो। फरहान अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाता है, म्यूजिक चलती है। गजल अपना पर्स बंद करके अपना हाथ फरहान के हाथ में देते हुए गजल कहती है, मुझे यकीन है तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। ये रोमांटिक म्यूजिक थोड़ी यहाँ से थोड़ी तेज होगी आवाज इसकी। फरहान और गजल एक दूसरे को देखते हैं। रोमांटिक म्यूजिक बैकग्राउंड में थोड़ी सी वो होगी तेज। और नाज़रीन और अरसलान को कुछ समझ नहीं है। नाज़रीन अपनी बुक पढ़ रही है, अरसलान अपने हाथ निकाल कर इन दोनों को देख रहा है, मगर ऐसे कुछ रोमांटिक सीन का समझ नहीं है। और यहाँ रोमांटिक म्यूजिक के साथ ये सीन यहाँ कट हो जाएगा। सीन नंबर 26, ये सीन नंबर 25 का तसल्सल है और ये मोहताज सीन है। मोहताज का मतलब जिसमें कोई डायलॉग नहीं होता। स्क्रीन प्ले में लिखा है कि फरहान बाइक चला रहा है, गजल इसके पीछे बैठी है, चेहरे पे हल्के हल्के खौफ के तासुरात हैं। शुरू में मजबूती से फरहान का कंधा पकड़ा हुआ है। फरहान बाइक आहिस्ता चला रहा है और हल्की रोमांटिक म्यूजिक चल रही है। मुख्तलिफ सड़कों से बाइक गुजर रही है। कुछ सड़कों से गुजरने के बाद, कुछ लोग गुजरने के बाद बाइक मुसलसल चल रही है। तो गजल के चेहरे पे अब इत्मीनान के तासुरात आ जाते हैं, जैसे का खौफ अभी अब ख़त्म हो चुका है। और वो बाइक मुख्तलिफ सड़कों से गुजर रही है। एक कॉमेडी एक म्यूजिक चलेगी रोमांटिक और ये ख़त्म, सीन खत्म हो जाएगा। सीन नंबर 27, ये भी सीन नंबर पिछले सीन का यानी 26 नंबर सीन का तसल्सल है। ये भी एक तरह का मोन्टा सीन है, इसमें भी कोई डायलॉग नहीं है। फरहान एक सुपरमार्केट के पार्किंग एरिया में बाइक खड़ी करता है और गजल नीचे उतरती है। फरहान बाइक लॉक करके गजल को लेकर सुपरमार्केट के अंदर जा रहा है। गजल और फरहान मुस्कुरा मुस्कुरा कर गुफ्तगू भी कर रहे हैं, जिसकी आवाज़ हमें नहीं आती, बस वो है सिर्फ म्यूजिक है। क्योंकि ये मोटा सीन है, ये सीन भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सीन नंबर 28, ये भी इसी सीन का तसल्सल है। तसल्सल से ये 3-4 सीन चल रहे हैं। ये भी मोटा सीन है जिसमें म्यूजिक के कोई डायलॉग नहीं है। इस सुपर मार्केट के अंदर का मंजर, एक ट्रॉली में गजल अपने पसंद की चीज़ें मसालों के पैकेट्स लेकर रख रही है। फरहान इसकी मदद कर रहा है, दोनों खुशगवार मूड में है। कुछ सामान के काउंटर पर पेमेंट करने पर गजल अपने पर्स से पैसे निकालना चाहती है तो फरहान प्यार से मना करके खुद अपने पर्स से पैसे निकाल कर देता है। गजल फरहान को देखे जा रही है। फरहान सामान के बैग्स उठाए, यानी शॉपर्स जो उनको दिए जाते हैं वो उठाए बाहर आ रहा है। 2 कदम के फासले पर गजल फरहान के पीछे पीछे चल रही है। ये सीन के मुताबिक मिसू सीन कट हो गया। सीन नंबर 29, ये सीन नंबर 28 का ही तसल्सल है, यानी पिछले सीन का। वक्त रात का, मकाम किचन, किरदार गजल और फरहान। स्क्रीन प्ले फरहान किचन में आलू और टमाटर वगैरह काट रही है। गजल सुपरमार्केट से जो सामान खरीद कर लाई है वो शॉपिंग बैग्स लेकर अंदर आती है। फरहान उसे देखकर चौंक कर फिर मुस्कुरा कर पूछती है, फरहान ये सब सामान तुम अकेले लेकर आई हो? गजल सामान का बैग एक तरफ रखकर इसमें से सामान निकाल कर अलग अलग सेट करते हुए जवाब देती है, मुझे मार्केट का कहाँ पता है, ये तो फरहान मुझे लेकर गया था। फरहान एकदम हैरतज़दा हो जाती है, कहती है, फरहान ये तुम्हें कहाँ से मिल गया? गजल में लॉन में अरसलान को कह रही थी कि वो सामान ले आया तो इतने में फरहान आ गया और फिर वो मुझे अपनी बाइक पर बिठाकर सुपर मार्केट ले गया। फरहान के साथ भाई तो फरहान इश्तियाक से पूछती है। इश्तियाक समझा एक तजस्सुस होता है ना, और एक शौक के मारे क्या बात हुई है जानना चाहती है, तो इस अंदाज में पूछती है फरहान के साथ।
जो कहती है उम्मा को कहती है कि फरहान के साथ बाहर जाकर कैसा लगा। गजल इस बात पर चौंक कर फरहाना को देखती है। फरहाना फौरन बात को संभालती है। गजल हैरत से पूछती जी। फरहान कहते वो मेरा मतलब है कि तुम जब से आई हो अभी तक बाहर नहीं निकली, तो आज बाहर जाकर कैसा लगा। गजल मुस्कुरा कर बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार बाइक पर बैठी थी। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था। गजल बाइक पर सड़कों पर सफर करने के तस्वुर में है। मोहन ताजा यहाँ फ्लैशबैक में सीन भी आ जाएगा। फरहाना खुशी से गजल के तरोताजा हंसते चेहरे को देखे जा रही है। गजल कहते मगर फिर फरहान ने मुझे काफी हौसला दिया। फिर मुझ में एतमाद सा आ गया। मुझे बाइक पर घूमने में बहुत मजा आ रहा था। बोलते बोलते अचानक गजल फरहाना से बराह रास्त कहती है। गजल कहती है फरहान आंटी आपका बेटा फरहान बहुत अच्छा है। ये कहकर अचानक गजल को कुछ ख्याल आता है कि वो क्या कह गई। रवानी में इसके मुंह से ये क्या निकल गया। गजल का चेहरा शर्म से सुर्ख होने लगता है। गजल अचानक शर्म से अपने गुलनार चेहरे को दुपट्टे से छुपाते हुए फरहाना से नजरें चुराते हुए किचन से तेजी से बाहर निकल जाती है। गजल को शर्माते हुए बाहर जाते देखकर बेहद खुश होती है। फिर एकदम से कुछ सोचकर मायूस होने लगती है। आंखों में फिर नमी सी आने लगती है और थोड़ी सी सेड में दुनिया चलेगी और सीन ये कट हो जाएगा। सीन नंबर 30 हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे। फिर हमारी वीडियो का वक्त मुकम्मल हो रहा है, तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें और इस चैनल को शोबिज़ से मुतालिक अफराद और उन अफराद तक जिन्हें फिल्में ड्रामे देखने का शौक है या जो राइटर बनना चाहते हैं उन तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इस चैनल से फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके अलावा आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो मैं बहुत मुनासिब फीस में आपके लिए एज ए राइटर काम करने के लिए मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ। इसके अलावा आपसे मुझसे रब्ता करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में अंदर रब्ता कर सकते हैं। इसमें मेरे तमाम कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं और इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में भी आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।